یہ خوبصورت نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں رضا انٹرپرائزز کی جانب سے حاجی اصغر رضا شاہ۔ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے گھر میں بھی جنت ہے، ہاں؟ اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن عجیب حیرت کی بات ہے صوفی صاحب قبلہ کہ جنت ہے گھر میں، جا کے تلاش رہا متھرا میں، کاشی میں، اجودھیا میں، ماں گھر میں، جنت اس کے پاؤں کے نیچے۔ آئی کھوج رہا پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے۔ سرکار غوث اعظم کس بات کے پھول ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ باغ زہرا ہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول، ان کے دربار میں جنت کا مزہ ملتا ہے۔ حدیث کے کہنے کے مطابق بچوں نے جنت کا باغیچہ لگا دیا ہے، علماء جنت کا میوہ بانٹ رہے ہیں اور سننے والے جنت کا میوہ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا 2 ٹکڑا تلاوت کیا۔ میری تقریر کا عنوان ہے مصطفیٰ اور موت۔ بڑا بھینکر عنوان ہے۔ موت کا نام سن کے ہی کتنے کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے کہ کیا مولوی کو لائے، بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا۔ ایک تو پہلی بار ہم لوگ بلائے، ارے کوئی جینے کی بات کرتا ہی بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا، اور کوئی آپ کو دوسرا سبجیکٹ نہیں ملا۔ ساری دنیا جینے کی بات کرتے ہیں، ملا جی مرنے کی بات کرتے۔ یہی تو بات سمجھنے کی کہ دنیا کے تمام لوگوں نے اپنے مرنے والوں کو جینا سکھایا ہے، اور مصطفیٰ نے اپنے ماننے والے کو خدا کی راہ میں مرنا سکھایا ہے۔ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو مجھ کو یہ یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ نوجوان طبقہ تو خاص طور پر موت کے عنوان پہ گفتگو نہیں سننا چاہتا۔ بعض جگہ تو پرزہ آ جاتا کہ مولانا صاحب زندگی پر بولنا ہے تو بولیے، نہیں تو اتر جائیے، ہم لوگ موت سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ارے کہ ہم لوگ ابھی جوان آدمی ہیں، کیا مرنے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں؟ بوڑھوں کو موت کی بات بتائیے، ہم لوگ تو ابھی جوان ہیں، ابھی ہم لوگ مریں گے۔ ملت کے نوجوانوں، تم سمجھتے ہو کہ ابھی موت تم کو نہیں آئے گی؟ کہا بالکل نہیں، دانت ایک دم ٹھیک ہے، آنکھ ٹھیک ہے، لیدر ٹھیک ہے، ویدر ٹھیک ہے، تو سب ٹھیک ہے، تو ہم کہیں ابھی مریں گے؟ ارے مرے وہ جن کی دانت نہیں ہے، مرے وہ جن کے پیٹ میں آنت نہیں ہے، مرے وہ لوگ جو اول جلول ہو گئے ہیں، ابھی ہم لوگ کہیں مریں گے؟ آم کا باغیچہ دیکھے ہو کہ اتنا بڑا مجمع میں کوئی نہیں دکھائے گا؟ ارے تو بولو نہ ہاں چاہنا۔ ہم کوئی ایسا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آم کا باغیچہ دیکھے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکولے بھی لگے رہتے ہیں، پکے پکے آم بھی رہتے ہیں۔ ٹکولے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی نیچے نہیں جائیں گے، یہ جو پکا ہے بڈھا وہی جائے گا نیچے۔ ٹکولے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے، یہ جو پکا ہے ہی جائے گا۔ لیکن رات کو جب ہوا کا جھونکا چلا، صوفی عبدالغفار صاحب جب باغ میں گئے تو کیا دیکھا کہ ٹکولے زمین پر گرے ہیں، پکا ہوا لٹکا ہوا ہے۔ یا اللہ، جن ٹکولوں کو ناز تھا کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے، وہ نیچے آ گئے، اور سمجھ رہے تھے کہ جو بوڑھا ہے وہی نیچے آئے گا، اوپرے ہے۔ تو صوفی صاحب قبلہ نے کیا کیا، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، لیا ان ٹکولوں کو لا کے گھر میں دے دیا۔ بیگم نے چھیل چھال کے اس کو سلوٹ پہ لٹایا اور آستین چڑھا کے اس کو جو کٹائی کیا ہے تو جغرافیہ چینج ہو گیا۔ یہ ٹکولے اب ہو گئے چٹنی۔ یا اللہ، جن ٹکولوں کو ناز تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، وہ چٹنی ہو گئے۔ اے ملت کے نوجوانوں، یہ مت سمجھو کہ ابھی ہم نہیں مریں گے۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات
آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کون کب جائے گا کسی کو پتہ نہیں، باپ موجود ہے بیٹا چلا گیا نہیں، بوڑھا زندہ ہے جوان چلا گیا۔ آپ کہو گے میں دن رات دیکھتا ہوں، خضرپور میں رہتا ہوں، سولانہ قبرستان کے ٹھیک سامنے والی گلی میں دن رات قبرستان کے پاس ہی رہتا ہوں، دیکھتا ہوں قبر میں بھی جلدی جوان نہیں اترتا۔ ارے کہنے کے لیے کھالو رے پھوپھا کدھر ہے بولا تو، بڑے ابا کدھر ہے بولا تو، یہ بڑے ابا کو خالو کو پھوپھا کا بلا رہا ہے، کہا قبر میں اترنے کے لیے۔ ابے تو کیوں نہیں اترتا؟ کہا جوان آدمی ہے نا، ابھی یہاں اترنا ٹھیک نہیں ہے، بہت منحوس جگہ ہے نا۔ یا اللہ، جوان جلدی قبر میں نہیں اترنا چاہتا ہے، وہ سوچ رہا خالو کو اتارو، پھوپھا کو اتارو، چچا کو اتارو، اور جو خالو آئے اترنے، لنگی کھوٹے اترے اور جلدی سے لٹائے اور پردے باہر آئے کہ کہیں منہا خلقناکم ہم ہی پہ شروع نہ ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نوجوان نہیں چاہتا ہے کہ ہم مرے، لیکن تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب آ جائے گا وہ فرشتہ تو پھر وہ ٹلے گا نہیں۔ اس لیے موت پر چند باتیں سنو۔ اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا، اور موت کیا تو کیا، زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ زندگی کو کیا تو کیا، موت کو کیوں پیدا کیا؟ یہ دونوں کاہے پیدا کیا؟ بولو بھائی، ارے یا تو نہ ہوتا نہ ہی رہتا، یا ہاں ہوا تو پھر نہ کہیں، یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یا پیدا ہوا تو پرماننٹ رہتا۔ یہ دونوں کیوں پیدا کیا؟ ہنس کے میرے جملے کو نہ ٹالیے، گہرائی میں اتر کے ایک ایک لفظ کو سوچیے۔ دونوں کیوں پیدا کیا؟ مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ نے مکھی مچھر کھٹمل کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار پر چھپکلی کو دیکھا، حضرت موسیٰ نے دیوار پر چھپکلی کو دیکھا، جو اللہ سے کہا ہے اے اللہ تو نے سب چیز کو پیدا کیا، یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، یہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے کہا اے میرے کلیم، یہی جواب، یہی سوال تو ابھی بسکٹیا نے تمہارے بارے میں کیا ہے کہ سب کو تو نے پیدا کیا، ہم کو سمجھ میں آ گیا، موسیٰ کو تو نے کیوں پیدا کیا یہ میری سمجھ میں آیا۔ تو تم پوچھتے ہو اس کے بارے میں، وہ پوچھتی تمہارے بارے میں، تم دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو بتاؤ، جب بسکٹیا جیسی مخلوق کو خدا نے بے مطلب نہیں پیدا کیا، اچھا جس چیز کو جیسے پیدا کرنا چاہیے ویسے ہی پیدا کیا۔ کچھ لوگ اللہ کے تخلیق پر کرٹیسائز کرتے ہیں، جی بہت پڑھ لکھ کے قابل ہو گئے ہیں، قابل نہیں بلکہ قبلاٹ ہو گئے ہیں، اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے نا سائنٹسٹ، انہوں نے کہا اللہ نے بنایا دنیا کو، لیکن کہیں کہیں معاذ اللہ سیٹنگ میں اور فیٹنگ میں گڑبڑی ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ کہا دیکھیے نا، آم کا گاچھ اتنا موٹا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اب پھل چھوٹا، کہاں یہ تو ہے۔ اور کہا تربوزہ دبلا پتلا، اتنا بڑا، یہ فیٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ کہا آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہا کہ تربوزہ میں آم اور آم میں تربوزہ۔ ٹھیک ہے، جا رہے تھے بیچارے سسرال، سوچا دوپہر کا وقت ذرا آرام کر لے، قیلولہ، آم کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، بڑھاپے کا جانور بیچ والا بال چڑھ گیا تھا، ایک دم دمدم کا ہوائی اڈا ہو گیا تھا، اوپر سے پکا ہوا آم ٹھیک ان کے بیچ کھوپڑی پہ گرا، سر سلاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ گئی۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا وہ ہم جو سوچتے تھے غلط ہے، جو کیا وہ ٹھیک ہے۔ کہا مطلب؟ بولے ہمارا خیال تھا کہ آم تربوزہ اتنا بڑا ہونا چاہیے اور تربوزہ آم اتنا بڑا، لیکن نہیں، ٹھیک ہوا ہے، یہ اتنا چھوٹا آم ہے تب تو اتنی چوٹ لگی ہے، اگر تربوزہ جیسا آم ہوتا تو آج اپنا بھی کوہڑا بھرتا باہر ہو جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بنایا ٹھیک بنایا، اور جیسا بنانا چاہیے ویسے ہی بنایا، ہے نا بھائی؟
तो बात यह है कि अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया और जिंदगी को क्यों पैदा किया, दोनों को क्यों पैदा किया? अगर आपसे मैं पूछूं तो कहीं उमर साहब इतना टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं। अरे कलकत्ते में तो ऐसे ऐसे गंवार लोग हैं कि मैंने खिदरपुर में एक आदमी से पूछा कि तुम किसकी उम्मत हो, तो कहा कि हम नया नया कलकत्ता आए हैं, अभी ज्यादा दिन से नहीं आए हैं। कह रहे नया पुराना से क्या मतलब है? डांटा मैंने तो कहा कि तुम किसकी उम्मत हो? कहा कि हम डग में काम करते हैं, आते हैं घर में खा पी के सो जाते हैं, हम ये सब झोल झाल में नहीं पड़ते हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने डांट के पूछा कि अबे तू है किसकी उम्मत? कहा गुस्सा मत होइए, हम उम्मत सरदार की बाड़ी में रहते हैं। या अल्लाह, कलकत्ता जैसे शहर में सूफी साहब इतने बड़े बड़े बकलोल मिलते कि उनको मालूम ही नहीं कि बाड़ी वाले का रैयत है कि माज़अल्लाह उम्मत है। तो जब ऐसा सीधा साधा सवाल का जवाब लोग नहीं जानते तो बताओ मौत को क्यों पैदा किया, जिंदगी को क्यों पैदा किया? ये तो बहुत अहम सवाल है। तो अल्लाह ने एक किताब भेजा है जिसका नाम है कुरान मजीद, और जिसमें सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में नहीं है। सहाबा फरमाते हैं कि हम लोग का ऊंट अगर जंगल में गुम होता था तो हम लोग कुरान में तलाशते थे और मिल जाता था। सहाबी का ईमान देखिए। मगर उस कुरान को हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो हमको मिलेगा कैसे? हम लोग तो कुरान को अलमारी में रखे हैं, जब कोई मरेगा तो खोलिएगा कुरान खानी होगी, नहीं मरेगा तो नहीं खोलेगा। या तो फिर किसी को शैतान पकड़े तब लाओ कुरान छुड़ाओ शैतान, या फिर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, या फिर मोहल्ला में चोरी हो तब लाओ पैसा रख दो कुरान। अरे कुरान को गांधी जी हिंदू होके पढ़ रहे हैं, जयप्रकाश हिंदू होके कुरान का तर्जमा कर रहा है, आचार्य विनोबा भावे हिंदू होके कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, कलकत्ता का राजा राम मोहन राय हिंदू होकर कुरान की तफसीर लिख रहा है, प्रोफेसर हीरालाल चोपड़ा हिंदू होकर 18 पारा कुरान याद कर रहा है, और हम लोग मियाँ होकर के निकाले चूमे छाटे फिर रखते। बोलिए, और तब दुकान में बैठ के बोलता कि मुसलमान तबाह हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गया। अबे तो होगा नहीं बर्बाद। पढ़ना चाहिए इसको तो पढ़ रहा है, समझना चाहिए इसको तो समझ रहा है वो। बताओ किस घर में कुरान नहीं है? लेकिन अब तो वो दौर ही खत्म हो गया सूफी साहब किबला। अब तो हमसे ज्यादा उम्र दराज आदमी है, आपने वो दौर देखा होगा कि जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरिए तो रात को सोते थे कुरान पढ़ के, उठते थे अजान सुनते। अब बदल गया जमाना, अब सोते हैं वीडियो देख के, उठते हैं रेडियो सुनते। नहीं, वो दौरे खत्म हो गया। जब बेटा की शादी हो तो बहू जहेज और जानमाज लेके आई तो पूरे इलाके में तारीफ, फला की बहू नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ती है। अब बारात आती है तो कोई नहीं पूछता कि कुरान मिला है कि नहीं, जानमाज मिला कि नहीं, सब लोग ही पूछते हैं कि टीवी छोटा साइज है कि बड़ा साइज है, और ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलर है। बोलो गलत कहता हूं? कल हम देखने जाते थे बहू तो ये देखते थे कि कुरान पढ़ती है कि नहीं। आज हम ये जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम से बीए है कि नहीं। बोलो, अरे बात तो घराने में बाज़ाब्ता नाचने वाली बहू तलाशते हैं, और 2 हफ्ता के बाद दौड़े हजरत। तुमने कहा क्या हुआ? अरे कहा जरा एक तावीज बना दीजिए। काहे को? कहा पतो सबको नचा रही है। हम कहा को तो नचैबे करेगी, नाचती आई है, नाचती आई है, सास को नचाएगी, ससुर को नचाएगी, भसुर को नचाएगी, देवर को नचाएगी, मर्द को नचाएगी, पूरा मोहल्ला को नचाएगी, और खुद नाचने वाली नाचती आई है, पूरा इलाका को नचाएगी। तुमने कुरान पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा? तुमने नमाज पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा? बोलो गलत कहते हैं सदर साहब? आज हम अपने बेटा के लिए या बेटी के लिए रिश्ता तलाशते हैं तो पहले जाके क्या देखते हैं? घर, हाँ आदमी ठीक है। अबे ई बोल के घर ठीक है, ई कैसे तुमको पता चला कि आदमी ठीक है? बोलो भाई, जिसका मकान ठीक हो कोई जरूरी है कि आदमी भी ठीक हो? जिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा है किसी का मकान चौपट था? आदमी सब चौपट, मकान खूब बढ़िया, कि कोई जरूरी नहीं कि मकान बढ़िया हो तो आदमी बढ़िया हो। अच्छे मकान देखने के बाद तब लोग दस्तरखान देखते हैं।
आया है बेटी बेटा देखने, दस्तरखान देख रहा है। हाँ हाँ आदमी ठीक है। अब यही बोल के दस्तरखान ठीक है, ये क्यों कहता है कि आदमी ठीक है? ये कोई जरूरी है कि जो बिरयानी खिला दे वो आदमी अच्छा भी हो? बोलो भाई, ये कोई जरूरी है कि जो सतुआ खिला दे वो आदमी खराब हो? बहुत सारे ऐसे हैं जो बिरयानी खिला देते हैं, आदमी चौपट है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सतुआ खिलाते हैं, आदमी अच्छे हैं। जो देखना चाहिए वो नहीं देखते सूफी साहब हैं। हाँ लड़का आया, हाँ ठीक है, लड़का ठीक है, हाँ वो अप टू डेट है। मतलब दाढ़ी मोछ का दुश्मन है, दाढ़ी मोछ का दुश्मन है। हाँ लड़की, हाँ लड़की ठीक है। कैसे मालूम? बोले लिपस्टिक लगाई हुई है, लड़की ठीक है। बोलो हंसते हो? हाँ तुमको हम बताने मेरे आका की हदीस क्या है। शादी ब्याह के मौके पर मेरे आका फरमाते हैं, कोई मकान देखता है, कोई दुकान देखता है, कोई खेत देखता है, कोई खलियान देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, कोई जूदो नवाल देखता है, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि तुम शादी ब्याह के रिश्ते के मौके पर लड़का और लड़की में ये देखो कि दीन है कि नहीं, जी दीनदार है कि नहीं। ये तो कोई पूछबे नहीं करता है। कौनो अकीदे का हो शादी खल दे, जी इधर का हो उधर का हो, कौनो नंबर हो, फटाफट। ये कोई नहीं देखता कि अकीदा क्या है इसका, गौस के खिलाफ है, ख्वाजा के मुआफिक है, इमाम आदम का कायल है, आला हजरत का मुखालिफ तो नहीं है, कुछ नहीं, बस खाली शादी कर दो। और यही वजह है कि तबाही और अच्छा खाली शादी है नहीं ना, अरे वाह आजकल शादी कहाँ, आजकल तो डकैती हो रही है। डकैती नहीं है, 10,000 खपड़ा उसके घर पर नहीं है, 50,000 नगदी, हीरो हुंडा ऊपर से, घर सजा के, यानी घर इनका सजावे बोली हीरो हुंडा दे घलुआ, और लड़की चाहिए सुपर वाइट चांद का टुकड़ा, और लड़का है चिड़िया खाने का लंगूर, और वो मांग रहा है जन्नत की हूर। उससे पूछो कि अबे लंगूर क्या करेगा तू लेके हूर? बोलो नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब मांगता है फटफटवा। बोलो सरकारे सुरकाहे का दामन नहीं छोड़ेंगे, मांगता है हीरो होंडा। गलत नारा मत लगाओ, पहले पकड़ो ख्वाजा का दामन तब बोलो कि नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ो गौस का दामन तब बोलो कि नहीं छोड़ेंगे। तुमने पकड़ा है नहीं और कहते हो कि नहीं छोड़ेंगे। हजरत अली ने मांगा था फटफटिया, तुम्हारा लड़का उनसे सुघर है, 5 पानी का पखारा है, बोलो ना भाई तुम्हारा लड़का उनसे क्वालिफाइड है। कितना क्वालिफाइड है रे? हम पूरा इंडिया घूम रहे हैं, कल ही हम संबलपुर से आ रहे, कल जा रहे हैं नवादा, उड़ीसा से आए, बिहार जा रहे, अभी विशाखापट्टनम जाना है। पूरे इंडिया में टूर करते हैं। मुसलमान के बच्चे कितना पढ़े लिखे, आइए बीए टाए टाए फीस, बोलिए न कहते मुसलमान बच्चे आपके यहाँ WBCS हैं, इस इलाके में कहते मुसलमान बच्चे MBBS हैं, कैसो ग्रेजुएट है, बोलिए। इसी पर फूल के गुलगुल्ला कि लड़का हमारा पढ़ा लिखा है, अरे MA पास की ओम में के MA में दोनों। हजरत अली से बेसी पढ़ा लिखा है, मांगा था हजरत अली ने जहेज। हैं शादी सुनोगे हजरत अली की? शादी तो कलकत्ते में भी होती, हम 46 से हैं कलकत्ता में। उस वक्त बाजा बहुत कम, 6 बाजा है तो केला खत्म हो गया सब, अब 3 दर्जन महबूब का बाजा है जी। एक तो नचनिया, एक तो साउंड बॉक्स, एक तो बेंजू, और ऊपर से मोहल्ला का 4 छोकरा अलग नाचने वाला। कहता कि चाचा घबराइएगा नहीं, अगर नचनिया कम है तो क्या हुआ, मोहल्ले की बात हम लोग है ना, इज्जत जाने नहीं देंगे, हम लोग नाच के बचा लेंगे। अबे नाच के डुबावेगा कि बचावेगा रे? अकल का टूवर कहीं का, कहता है मोहल्ला की इज्जत बचा लेंगे, अबे बचाएगा कि डुबाएगा रे? जरा समझदारी देखिए, दोबारा इज्जत कहता है कि नाच के बचा ले। दिखते नहीं बारात में दिन रात देखते कि नहीं? मौगा का नाचेगा जो मोहल्ला का छोकरा नाच रहा है, रुमाल का कोना पकड़ के डांस कर रहा है।
10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का छूट। नाच पढ़ने वाले को भले 2 रुपया नहीं देगा, नचनिया को 500 रुपया का नोट। बोलो ये रोने की बात है या हंसने की बात है? हाँ, यही गौसे आजम की तालीम है, यही इमाम अहमद रजा की तालीम है। क्या अपनी हरकतों से आला हजरत को बदनाम कर रहे हो? क्या पटाखीनों को सुन्नियों पर बोलने का मौका देते हो? नाम का सुन्नी मत बनो, काम का सुन्नी। एक बीमारी नहीं है। नौजवान सोचते होंगे या अल्लाह हम पहली बार बुलाया, ये मौलवी तो बैठते बैठते हम ही पर बरसा। बूढ़े लोग सोचते होंगे अच्छा है हम लोग को कुछ नहीं बोल रहा है। अरे तुमको तो वो खुराक देंगे कि मिजाज हरा हो जाएगा। ये बूढ़े लोग कम गड़बड़ हैं। हाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सनीमा में लाइन लगाए हैं। 70 बरस का बुढ़ा रोज दाढ़ी छिला के दमदम का हवाई अड्डा बना रहा है। अब का छोकरा बनोगे कि दूसरी शादी कीजिएगा? अभी कितना छिलाओ बाबू, जवानी नहीं आवेगी। नाउ से कहता है कि खूंटी निकाल दो। इलियट रोड का कॉन्फ्रेंस का पिंडाल है ताकि इसमें खूंटी खंबा है। बोलो गलत कहता हूं? हैं? जब बूढ़े दाढ़ी नहीं रखेंगे तो जवान कैसे दाढ़ी रखेगा? कहते हो कि लड़का बिगड़ गया। अरे लड़का से पहले तो बड़का बिगड़ा है, लड़का तो बाद में बिगड़ा है। अब तो कम से कम दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत अपनाओ, तब तो नौजवान तुम्हारी देखा देखी दाढ़ी रखेगा। तुम मस्जिद में जाओगे तब तो वो नमाज पढ़ेगा। जब तुम ही चौराहे पर बैठ के ताश खेलोगे तो बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे? मैं तो आरा जिला देहात का रहने वाला हूं, कलकत्ते में 46 से हूं, पूरे इंडिया का टूर करता हूं। मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है इस लाइन का। शहर का बुढ़ा सनीमा देखने में तबाह, और देहात का बुढ़ा नाच देखने में बर्बाद। हाँ? कितने बूढ़े जलसे में नहीं आए होंगे, पूछिएगा चाचा आप आए नहीं? बोले हमको नजर आता है, हम कैसे आएंगे? अच्छा, मोहल्ला का कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आता है? धर्मतल्ला फिल्म देखने चले जाओगे, वहां ठीक नजर आ जाएगा। देहात में चले जाओ, मोहल्ला के मिलाद में बूढ़ा नहीं आएगा। अब 5 कोस विदेशिया का नाच देखने चला गया। खेत की पगडंडी पर गिरत बहराक डांट झिमझाट भागा चला जा रहा है। बोलो, लेकिन सब बूढ़े ऐसे नहीं हैं। इन्हीं बूढ़ों में देखो चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, माशाअल्लाह, है ना भाई? और जवान को क्या बताऊं, एक बीमारी ने तो पूरे इंडिया को आमतौर पर और बिहार को खास तौर पे तबाह कर दिया, और वो है जहेज का मुतालबा। हमारे कारी फरीद साहब ने कहा था मौलाना जहेज पर जरूर कुछ बोलिएगा। हमने कहा जहेज? अरे अभी तो लड़का लोग जहेज मांग रहा है, जगह कम है जहेज मांग रहा है। जिस दिन जगह हो जाएगी जहाज मांगेगा, जहाज। अभी एक ठो कमरवे है बेचारा, जहाज कहां से मांगेगा? है लड़का पढ़ा लिखा, हजरत अली से बेसी पढ़ा लिखा है। हजरत अली जैसा दूल्हा, बीबी फातिमा जैसी दुल्हन, सुभान अल्लाह। न हो न पोपो, न आजा, न बाजा, न गाजा, न मौगा, न नाच, कुछ था? आज तो शादी में बाजा न बजे तो हमारी खाला बुआ लोग क्या कहती है कि दूर ये कोनो बियाह हुआ है, ये तो मरनी हो गया। जिस शादी में बाजा न बजे वो तो मरनी है, मैयत है। बोलो, बीबी फातिमा की शादी में बाजा बजा था? हैं? बोलो, बाजा बजा था? हैं? हजरत अली की शादी में बाजा बजा नहीं? गौर करो, मस्जिद में बारात गई, मुस्तफा निकाह पढ़ाए, छोहाड़ा बटा, बेटी वाला अपना घर, बेटा वाला अपना घर। हैं? आज बोटी छोटी हो जाए तो समझी भाई नीलगाय की तरह भड़कते हैं। बेटा वाला नीलगाय की तरह भड़कता है। हम आदमी लाए बड़ा बड़ा, आप पर्चा बना दिया छोटा छोटा, हमरा इंसल्ट हो गया। तो इसका मतलब कि बाराती का मुंह का नाप तुम नहीं भेजा था, उसी हिसाब से वो बोटी बनाया था। बोटी छोटी हो गई तो इंसल्ट हो गया,
रसूल ने तो हजरत अली की शादी में खिलाया ही नहीं, वो अगर दस्ते कदम उठा देते तो जिब्रील जन्नत से खाना लेके आ सकते थे। हैं? क्या शादी, कुछ नहीं। जहेज, आजकल जहेज का लिस्ट पहले बारात बाद में, वो लिस्ट है कि पूरा कलकत्ता का जादूघर है। इतना सामान तो कलकत्ता के म्यूजियम में भी नहीं है जो जहेज के लिस्ट में। सोफा सेट, टीवी का सेट, वीसीआर का सेट, स्टील का प्लेट, चीनी का प्लेट, अबे तेरा पेट है ना जहन्नम का गेट है। सब ले दे के भी समझी का मुंह देखे हो उत्तरी बिहार के सुथनी की तरह लटकाए हुए। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला बे। नया स्टाइल का भिख मंगा, हंसते हो, घूमो तब तुमको समझ में आएगा कि कितनी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 40 साल हो गई मगर पैसे नहीं है। आज वो बच्ची सुहागिन नहीं अभागिन बनी हुई है। हजरत अली ने जो जहेज को मिला था, जहेज में क्या, मिट्टी का घड़ा, लकड़ी का प्याला, चमड़े का तकिया, छोबड़ा का गद्दा, यही सवाल है। आज अगर इस सामान कोई दे हाफिज है तो मारा मारी रखा है नहीं। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को सोने का मांग टीका नहीं दिया था मगर अपनी बेटी को सजदे का मांग टीका दिया था। मेरे रसूल ने अपनी बेटी को बनारस की साड़ी तो नहीं दी थी मौज़िउद्दीन साहब, मगर मेरे रसूल ने अपनी बेटी को हया की चादर दी थी। चली थी बाप के घर से नबी की लाडली बहने, हया की चादर, इज्जत का जामा, सबके गहने, और दिखाया था उर्बगना मुशद्दद जो मुकद्दर में मिली थी चक्कियां, 2 टाके आटा पीस ले घर में। रसूल की बेटी अपने ससुराल में आटा पीस रही है। आज हमारे घर में अमीर घर की बहू आती है, हमारा बाप बाड़ी वाला, गाड़ी वाला, हांडी वाला, हम खाना बनाएंगे, हमारा बाप मकान वाला, दुकान वाला, खेत वाला, खलियान वाला, हम पानी भरेंगे। रसूल की बेटी जिसके अब्बा के कब्जे में कायनात की चाबी है, उनकी बेटी पानी भर रही है, उनकी बेटी आटा पीस रही है, हाथों में छाले पड़ गए। किसी ने कहा जाओ ना सरकार, नौकर बांट रहे हैं। दौड़ी हुई फातिमा गई, कहा अबू एक नौकर हमको भी दे दीजिए। देखिए हाथ में फोले पड़ गए हैं। कहा बेटा नौकर से अच्छी चीज दे दूं तो? कहा आपकी मेहरबानी। कहा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 100 मरतबा खुदा का नाम पढ़ो, नौकर से अच्छा। हमारी बेटी होती, आपकी बेटी होती, बिगड़ जाती कि अब्बा सबको बांट रहे हैं, हमको डांट रहे हैं। मगर रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम। ओ पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनों सुनो, रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करती थी। बोलो 3 काम तुम करती हो? 2 काम करती है, हाथ से आटा सानती है, मुंह से गाली देती है। नहीं, हाथ से झाड़ू देती है, मुंह से झगड़ा करती है। अब गाली तो ऐसी ऐसी देती है सूफी साहब, तो लोग खोज लीजिए तो माने नहीं मिलेगा। कलकत्ते की औरतें जब झगड़ा करती कि जबान देखिए, कच 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 कच, सुपर फास्ट है, राजधानी सुपर फास्ट है। इसलिए तो उसका स्टॉपेज है, इसका नॉन स्टॉपेज। चाहे सूफी साहब आ जाए, चाहे मौलाना साहब आ जाए, चाहे हाफिज साहब आ जाए, चाहे हसमी साहब आ जाए, कौनो साहब आ जाए, एक सांस में 9,72,000 गाली। बेनुक्ता कि अल्लाह की पनाह। सुना नहीं, एक आदमी की घड़ी गुम हो गई तो उसने कहा बीवी से कि बेगम, तो शौहर ने, बीवी ने कहा क्या हुआ गम? कहा घड़ी हो गई गुम। तो कहा खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी। कहा खरीद लोगे? कहा बहुत अच्छी थी। अरे कहा खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी। तो बीवी ने बिगड़ कहा क्या हमसे भी अच्छी थी? तो शौहर ने कहा कि हाँ। अब बेगम इसको कैसे बर्दाश्त करे कि हमसे भी कोई अच्छा हो? कहा क्या खूबी थी उस घड़ी में जो हम में नहीं? तो शौहर ने कहा कि उसमें एक खूबी थी जो तुम में नहीं। वो घड़ी जब बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। वो जब बिगड़ती थी तो चुप हो जाती थी और तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो।
रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करे, हाथ से आटा साने, पांव से हसनैन, करीमैन, कौकबैन, कमरैन, नैयरैन, शहीदैन, अजीमैन, जमीलैन, जलीलैन, सैयदना हसनैन का झूला झुलाएं, ज़बान से सुभान अल्लाह। रात को दुनिया सोती है, रसूल की बेटी सोती नहीं। हुजूर की चटाई उतार के अल्लाहु अकबर, सर सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, इतना लंबा सजदा किया फातिमा ज़हरा ने कि हज़रत बिलाल हबशी ने सुबह की अज़ान दे दी। सुबह की अज़ान की आवाज जब कान के पर्दे से टकराई तो बीबी फातिमा ने सर उठाया, कहा है मेरे मौला, तूने रात को इतनी छोटी बनाई कि फातिमा एक सजदा भी नहीं कर सकी। काश कि तू रात को इतनी लंबी बनाता कि कम से कम फातिमा एक सजदा तो कर लेती। और करो मेरी माँ और बहनों, रसूल की बेटी रात भर सजदा करे, ये हवा की बेटी रत जगह में रात भर ढोलक बजावे। अरे पहले तो रत जगह ऐसे ही होता था, माइक पर रत जगह हो जी। और करो, ये हमारी औरतें भी कम नहीं है। अरे किसको कहिएगा, आवे का आवा खबरा नरिया कच्चा है, बूढ़ा अलग गड़बड़, जवान अलग गड़बड़। ये बेचारा अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बनने में परेशान। ये फिल्म और टीवी देख देख करके बोलेगा हीरो की तरह, चलेगा हीरो की तरह, खाएगा हीरो की तरह, मटकेगा हीरो की तरह। पहले जनाब मर्द कान नहीं छेदाते थे, अब लड़के कान छेदा रहे हैं, अब कान में कानबाली पहन रहे हैं और सर में जनाब क्लिप लगा रहे हैं, होठ में होठ पालिश लगा रहे हैं। हाँ, और लंबे लंबे बाल बढ़ा करके रोड पे चलते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि लेडीज कौन है और लेडस कौन है। गलत कहता हूं? ये फिल्म का नतीजा है। जो फिल्म में देख रहा वही मोहल्ला में थ्योरिकल प्रैक्टिकल अमल करता है, बोलता है हीरो की तरह, चलता है हीरो की तरह। बंबई का हीरो जब सटा के पैंट पहना तो इस सटा के पैंट पहना, जब वो पैंट ढीला किया तो इसका पैंट ढीला हुआ, जब उसका पैंट नीचे था तो इसका पैंट इतना नीचा का पूरा कलकत्ता का थूक खखार उसी ने बटोर के साफ कर रहा है। अब बंबई वालों का पैंट थोड़ा ऊपर हुआ है, अब इन लोगों का पैंट भी थोड़ा ऊपर हुआ है। अब एक ही डर है कारी साहब, किबला फरीद साहब, कि कहीं बंबई वाला खोल मत दो, ये खोल देगा। मिल्लत के नौजवानों, हंस के मेरे जुमले को न टालो, नकल करो, अमिताभ बच्चन की नकल मत करो, राजेश खन्ना की नकल मत करो। अरे नकल करना है तो मुबारकपुर के हाफिज मिल्लत की नकल करो, गया के सिराज मिल्लत की नकल करो, बरेली के मुफ्ती आजम की नकल करो, जेवा के वारिस की नकल करो, सुल्तानी के बाबा से गली की नकल करो, चौसा के मखदूम की नकल करो, गरानीगंज के गांव से बंगाला की नकल करो, मुजाहिद मिल्लत की नकल करो, बुजुर्गानी दीन की नकल। तो किसको किसको कहिएगा? हैं? नौजवान अलग गड़बड़, औरतें अलग गड़बड़। अरे ये फातिमा नहीं बन सकती हो, मगर कोशिश करो तो फातिमा की कनीज तो बन सकती हो। आज कितने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, घर में जाइए दरवाजे पर पर्दा, खिड़की पर पर्दा, अलमारी पर पर्दा, अटैची पर पर्दा, बक्सा पर पर्दा, टीवी पर मखमल का पर्दा, अभी भी लिपस्टिक लगा के जीटी रोड पर लेफ्ट राइट। या अल्लाह, कितना बड़ा बुढ़ुआ है कि टीवी को पर्दा में रखे हुआ है, अब टीवी को लिपस्टिक लगा के धर्मतल्ला मैदान में घुमा रहा है। हाय रे बुढ़, रखना चाहिए किसको पर्दे में, तो रखता है किसको पर्दे में। औरत जब जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती तो औरत जोर से गाना गा सकती है? तो किसको किसको? लड़के इनका तो कुछ कहने ही नहीं। एक एक लड़के 2 दर्जन से कम गाना याद नहीं, खाली साउंड बॉक्स लगा दीजिए, वो नाचता है सब। हम माँ बाप दोनों शौक से क्या हमारा बेटा नाच रहा है। अगर इमाम साहब गुजर देखिए इमाम साहब वही लाल रंग का शर्ट पहन के नाच रहा है, उनका बेटा कितना बढ़िया नाच रहा है। या अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कल किसी का बेटा नाचता था तो शर्म के मारे बोलता नहीं था, आज बेटा नाच रहा है, माँ भी तारीफ कर रही है, बाप भी तारीफ कर रहा है, और नारा लगाता कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। वाह रे भैया वाह, खूब पकड़े हो, गौस का दामन पकड़े हो। ये तो वही हाल है कि रोजा खोलने जा रहे हैं, अब पता चला कि तो रखबे नहीं किया था। अरे तो खोलने कौन सी गया था?
नहीं देखते हैं रोजा रमजान में, कहाँ जाए रोजा खोलने। अब पता चला कि इनका तो बंदे नहीं था, तो खोले कौन चीज। अरे रोजा खोला ना जाता, सुविधा हमारा फरज से खोलिएगा, मुंह बंद है छोहाड़ा से खोलिएगा, केला से खोलिएगा, बंद है तब न खोलेंगे। जिसका बंदे ना हुआ 12 बजे दिन को गेटवे ऑफ इंडिया की तरह इनका फाटक खुला रहा, छुटुआ सांड की तरह सबके सामने भकर भकर खाते रहे, तो इनका तो बंदे ना हुआ था, खोलने कौन सी गए थे। ठीक यही हाल है बेअमल सुन्नी मुसलमान का। बाबा तेगली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिस साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, रोज दाढ़ी छिलवा के मोहली में फेंक रहा, बोलता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौस दाढ़ी मुड़ाते थे, बोल खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा नमाज छोड़ते थे। गौस की जिंदगी जानते हो, खाली गौस ने मुर्गा ये जिला दिया यही तुमको याद है, मुर्दा जिला दिया यही तुमको याद है। अरे गौस की जिंदगी का वो हिस्सा भी सुना है कभी तुमने कि 17 बरस गौस से पाक दाना नहीं खाए और 40 बरस गौस से पाक सोए नहीं। 17 बरस खाए नहीं, बोलो क्या खाए 17 बरस में? दरख्तों की पत्ती खाए, दरख्तों की जड़ खाए, और प्यास लगी तो दजला का पानी पिया। आज हम लोग एक दिन गोश्त न मिले तो रोटी अंदर नहीं जाए इसलिए कि बोटी नहीं है, मगर वाह रे मेरे गौस जिसके नाम पर तुम जलसा कर रहे हो, वाह रे मेरे गौस 17 साल दाना नहीं खाए, कैसे नफ्स को मारा, और 40 साल सोए नहीं, तब ना गौस का मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है, तब ना गौस का मुर्गा हर जगह बांध दे रहा है, तब ना गौस की महफिल हर जगह सजी है, तब ना गौस का झंडा लहरा रहा है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। बोलो खाली मुर्गे याद है, ये सब याद नहीं है। कड़वा कड़वा थू थुआ मीठा मीठा घप घप, जो अपने मतलब का वही खाली ले लोगे, और जिसमें थोड़ा परिश्रम है उसको छोड़ दोगे तो किसको कहिएगा। हैं हमसे कहा है लोगों ने माशरे की इस्लाह पर तकरीर कीजिएगा। बेशक इस्लाह 2 किस्म की होती है, अकीदे में खराबी हो गई है उसको भी सुधारा जाए, और अमाल में खराबी हो गई है इसको भी सुधारा जाए, है ना भाई। ये हमारे अमाल की खराबी है कि मस्जिद तो बड़ी आलीशान बना देते हैं, नमाजी का पता नहीं है, शहरी खूब डट के, इफ्तारी खूब कस के, और रोजा रखबे नहीं किया। या बाद लोग 2 दिन रोजा रखते हैं रमजान में, कलकत्ते में पहली रमजान आखिरी रमजान, बोले 2 दिन, बोले घेर दिया रमजान को, अब जाएगा किधर से। अब बाद लोग खाली सेहरिये खाते हैं। अगर पूछ लिया सूफी अब्दुल गफ्फार साहब ने कि आप तो रोजा रखते नहीं, सेहरी क्यों खाते हैं? क्या मान लिया कि हम रोजा नहीं रखते, तो क्या एकदम काफिर हैं कि सेहरी भी नहीं खाएं? अल्लाह, रोजा रखने के लिए मुसलमान नहीं है, मगर सेहरी खाने के लिए 16.25 आना मुसलमान। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम दिया जा रहा है कि नाम का सुन्नी मत बनो, काम का सुन्नी बनो, नाम का बरेलवी मत बनो, काम का बरेलवी बनो, नाम का सुन्नी जमात मत बनो, काम का सुन्नी जमात बनो। तुम्हारे चेहरे से भी सुन्नत झलके, तुम्हारी सूरत से भी सुन्नत झलके, तुम्हारी सीरत में भी सुन्नत रसूल की झलक। बूढ़ा अलग गड़बड़ है, जवान अलग गड़बड़ है, औरत अलग गड़बड़ है। पहले की माँ अपने बच्चों को क्या सिखाती थी? हैं बाबू सूफी साहब आए हैं सलाम कर दो, ता कर दो, ता कर दो, ता कर दो। हाँ वो नहीं, बाबू मेहमान जा रहे हैं, ता ता, अब सलाम नहीं, ता ता। लड़का क्या बोलता है? ता ता। मेहमान को बोलता ता ता, इशारा देगा, फिर कभी मत आवेगा, आ गया तो आ गया, फिर कभी मत आवेगा। ये गलती कभी मत करेगा। टाटा बनावे लोहा और बाटा बनावे जूता। बच्चों को खुदा का नाम सिखाओ, लोहा बनाने वाले का, जूता बनाने वाले के नहीं। जो दुनिया का मालिक है उस खुदा का नाम सिखाओ। बोलो गलत कहते हैं, हैं? सरकार गौसे आजम की माँ ने क्या सिखाया था? 40 सोना का रुपया कुर्ता में सिल दिया, कहा बेटा झूठ मत बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे। आज हम लोग क्या सिखाते हैं? बाबू बच्चा को माँ का सिखाती, बाबू मौलवी मौलाना के फेर में कभी मत पड़ोगे, इन लोग का काम है बोलने का, हम लोग का काम है सुनने का। कारवारी आदमी हो, झूठ नहीं बोलोगे तो खाने को मिलेगा। आज यही सिखा रहे। हाँ अरे मौलवी साहब लोग का काम है बोलने का, हम लोग का काम है सुनने का, उनको बोलने दो, हमको सुनने दो।
सरकार गौसे आजम की माँ ने क्या सिखाया? सच बोलोगे। आज पप्पू की माँ ने चप्पू की माँ से कहा, पप्पू की माँ ने, ये सब आजकल नया मॉडल का नाम है, पप्पू, चप्पू, बबलू, डबलू, गुड्डू, लुड्डू, मुन्नू, चुन्नू, राजू, गब्बर। नाम से नहीं पता चलेगा कि इधर का है कि इधर का है। सुना, लड़की का नाम रिंकी, ज़ैनब नहीं, ओल्ड मॉडल है, फातिमा नहीं चलेगा, ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल को नाम लीजिए। रिंकी, हाँ ठीक है, सिंकी ठीक है, पिंकी एकदम ठीक है, टिंकी बोले बहुत अच्छा है, बोले स्वीटी बोले आओ बढ़िया। असल वो लोग पहले नाम लाते थे मस्जिद से, मदरसा से और खानकाह से। पहले जब मुसलमान घर में बच्चा हो तो मस्जिद में गए इमाम साहब नाम दीजिए, खानकाह में गए पीर साहब नाम दीजिए, मदरसा में गए मौलाना साहब नाम दीजिए। अब तीनों जगह जाइए नहीं करता है, जाता है? वो तो बकरी थी जो मस्जिद में चली गई, मुअज्जिन दौड़ाया, किसकी बकरी है चली आई, तो बकरी वाला कहा कि मेरी बकरी है, जानवर है नहीं जानती है चली आई है, आप बताइए हम कभी आए हैं? बोले नहीं तुम तो कभी नहीं आए। बोले हमने अब्बा को कभी देखा था? बोले नहीं नहीं। बोले हमारा खानदान? बोले नहीं कभी नहीं देखा। कहा कि हम आज भी नहीं आते, बकरी के चलते आना पड़ गया, और अब देखिए कान पकड़ते हैं, ऐसी गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। या अल्लाह, गलत कह हंसते हो, आज मस्जिदें वीरान हैं। मस्जिद में बैठा हुआ आदमी को हम देखा है, इमाम साहब से बातचीत कर रहा, चाय पी रहा, पान खा रहा, इतने में असर की नमाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जानते क्या कर रहे हैं? इमाम साहब जा रहे हैं, कहाँ है? अजान हो रही है। अबे तो अजान सुन के शैतान भागता है कि मुसलमान भागता है रे? या अल्लाह, हदीसों में पढ़ा है कि अजान की आवाज सुन के शैतान हवा छोड़ते हुए भागता है। ऐ मुसलमान होके मस्जिद में है तो वहां से अजान सुन के भाग रहा है। बोलो, तो अब मस्जिद में जाता नहीं, मदरसा में जाता नहीं, खानकाह में जाता नहीं, फिल्म देखने सिनेमा में गया, पप्पू मिल गया वो नाम लेके चलाया, चप्पू मिल गया वो नाम के, चाहे राजू चाहे गब्बर जो मिल गया लेके चलाया। नाम अपने बच्चों का अच्छा रखो। तो पप्पू की माँ ने चप्पू की माँ से कहा, सुन रही, पप्पू की माँ का क्या हुआ? चप्पू की माँ, अरे कहा मेरा पप्पू 8 आना पैसा ले गया, बनिया के हाथ से धनिया भी लाया और अठन्नी भी लाया। तो चप्पू के माँ ने कहा तुम्हारा पप्पू आगे चल के कोई बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, आज अठन्नी मारा है, कल हुकूमत का लाखों मार के कंपनी फेल, मालिक लाल बत्ती जला देगा। बोलो उसी वक्त अगर माँ ने कान पकड़ के 2 तमाचा मार दिया होता, यही अठन्नी चुराने की आदत छूट गई होती, यही बनिया की अठन्नी चुराते चुराते बंगाल का बॉस, बम्बे का दादा और चंबल घाटी का डाकू हो गया। तो बताइए बच्चों को डाकू किसने बनाया? बच्चों को चोर किसने बनाया? कहते हो लड़का बिगड़ गया, पहले बड़का बिगड़ा तब बाद में लड़का बिगड़ा। सरकार गौसे आदम की ये महफिल है। हुजूर की उम्र जब 4 बरस 4 महीना 6 दिन की हुई तो आपको मदरसे में दाखिल किया इनकी अम्मी ने। इससे पता चला कि मुसलमान लड़का या लड़की जब 4 बरस 4 महीना 6 दिन का हो जाए तो उसको मदरसे में दाखिल करके बिस्मिल्लाह जरूर करा दो। बोलिए, हम लोग कराते हैं। 3 साल पर सन थॉमस में दाखिल करा के कुत्ता बिल्ली चूहा सिखाता है। क्या सिखाता है? कुत्ता बिल्ली चूहा। ऐसी पढ़ाई है कि 50,000 खर्च करके 1 लाख खर्च करके, और सिखाया कहा शुरू हुआ कुत्ता से। 10 रुपया ना खर्चा हो, मस्जिद में जाओ, बिस्मिल्लाह से मौली साहब शुरू करा देंगे। आज हमको वो पढ़ाई नहीं पसंद है जो अल्लाह के नाम से शुरू हो, और वो पढ़ाई के लिए मिनिस्टर का सोर्स पकड़ते हो जो पढ़ाई कुत्ता सिखावे और बिल्ली सिखावे। बोल, मरने के बाद कौन पढ़ाई काम आवेगी? कुकुर वाला कि बिस्मिल्लाह वाला? अरे मरने के बाद खबर बजाय क्या पड़ेगा? सीधी कैच कट में बिल्ली, अरे टीचर में चूहा, डॉग में कुत्ता, ये अल्लाह अब्बा हमारे खबर में तीनों पहुंचा दे। बोल, अरे मदरसा का मुंह देखा नहीं, सूफी साहब के यहाँ गया नहीं, हाफिज साहब के यहाँ गया नहीं, कुल हुवल्लाह पढ़ा नहीं, बोल कहां पर के सवाब पहुंच जाएगा? आज तो मुसलमान का ये हाल है कि मुर्गा खाने जानता है मगर मुर्गा जबह करने नहीं जानता है। जी, लेके मुर्गी यहां से एकदम धर्मतल्ला मैदान तक कूद रहा है। किधर गए हाफिज जी? किधर गए इमाम साहब? किधर गए मौलवी साहब? कहा हुआ? मुर्गी जबा करना है, मुर्गी जबा करना नहीं आता। कैसा मुसलमान है? बद्र के मैदान में मुसलमान पटक के काफिर को जबा कर दिया, इससे मुर्गी नहीं जबा होती है।
होटल में बैठ के वो शिकायत करेगा मौलवी का, क्या डुबा दिया मौलवी, भसा दिया मौलवी, सब काम चौपट कर दिया मौलवी, लो सब काम चौपट कर दिया मौलवी। अरे मौलवी ना होता तो तेरे बाप का निकाह कौन पढ़ाता बे? बोल, हलाली पैदा होता कुछ और होता। मौलवी ना हो तो तेरे बाप का चरिश्मा कौन पढ़ेगा रे? बोल, मकान लिया तुम, दुकान लिया तुम, खेत लिया तुम, खलिहान लिया तुम, गाड़ी लिया तुम, बाड़ी लिया हम, तुम, अब कुरान पढ़े हम। बोल, बाप तोरा था कि हमरा? बोला हमरा, तो तुम क्या नहीं पढ़ता रे? मौलवी साहब कहाँ कुरान पढ़े? बोल, बाप तोरा, खेत लिया तुम, मकान लिया तुम, दुकान लिया तुम, पैसा लिया तुम, कुरान पढ़े हम, हमरे सब बुध हुआ, तोरे सब चालू। कितना बड़ा एहसान मौलवी कर रहा, बोलिए भाई। इस पर भी होटल में बैठ के मौलवी की शिकायत, पीर की शिकायत, एक झूठा कमा जनबे करता है। इमाम साहब के पीछे नमाजों पढ़ेगा और पीठ पीछे कहेगा ऐसे हैं तो वैसे। अबे तो पढ़ता काहे पढ़े रे? 500 रुपया देगा इमामत का नखरा जी। आप तो इमाम साहब बराबर कुल हवल्ले पढ़ते हैं, आपको कोई बड़ा सूरा नहीं आता है क्या? अच्छा भाई, अब बड़ा सूरा शुरू किया था, आप तो नाच लिया है बड़ा सूरा, थोड़ा छोटे पढ़ते तो क्या हर्ज है? आपको क्या है दिन भर सोना, रात भर सोना, हम लोग को कारोबार करना है। अच्छा, चैन नहीं सुनी। और अगर इमाम साहब नीचे देखे, शरीफ बात, अरे मौलविया बड़ी घाघ है रे, नीचे देखता बहुत दूर तक देखता है, अभी नीचे। और अगर बेचारा ऊपर देखा, मारा फालतू है, इधर को झांकता फिरता है, या अल्लाह, ऊपर देखे तो मुसीबत, नीचे देखे तो मुसीबत। सही कहता हूँ, छोटी पड़े तो मुसीबत, बड़ी पड़े तो। सूफी साहब जानते हैं मुझको ना, 34 साल मैंने इमामत किया। अरे बाप, वो बोकराट बोकराट। एक तो कहा कि आपके पीछे नमाज जाए, इनका कहाँ है? नमाज में आपका पांव आगे पीछे होता है। हमने कहा नमाज में तुम देखा कैसे कि हमारा पांव आगे जाता है कि पीछे जाता है? नमाज में आदमी को अपना पांव देखने का हुक्म है कि पूरा कलकत्ता का पांव देखता फिरेगा? बोलिए, ये इस कौम का हाल है जी। हाँ, कुछ गलत मौलवी हैं, लेकिन सारे उलमा को नहीं बोल सकते। कुछ गलत पीर हैं, मगर सारे पीरों को नहीं बोल सकते। हम लोग बरेलवी मुसलमान हैं, पीरों का पांव धो के पीने वाले, लेकिन कुछ गंजेड़ी पीर भी हैं, कुछ भंगेड़ी पीर भी हैं, मार गाजा टान रहे हैं, भांग टान रहे हैं। और मुरीद ने बोलता है कि हजरत पहुंचे हुए, अभी पता नहीं जहन्नम में पहुंचे हैं कि कहां पहुंचे हैं। पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। नकली पीर भी बड़ी तबाह किए हुए कलकत्ता में। झोटा सा, लोटा सा, सोटा सा, हरिया पीर, डंडा पीर, छुरी पीर, कटारी पीर, बकली पीर, बकुला पीर, लक्कड़ पीर, बग्घल पीर, अंडाला सा, भंडाला सा, हंगाला सा। रोजानी नमाज में दिन रात तारी, दिन रात गांजा, दिन रात भांग। और मुझे लोग बोलता कि हजरत पहुंचे हुए हैं, जहन्नम में पहुंचे हुए। अब एक झोटा बढ़ाने से अगर आदमी पीर हो जाए तो जितना भालू है सब पीर हो जाएगा। सब छिलवा के चिकना करने से अगर आदमी वली हो जाए तो कछुआ से बड़ा वली कौन होगा? हवा में उड़ने से अगर आदमी वली हो जाए तो सब मच्छर वली हो जाए, और पानी पर चलने से अगर वली हो जाए तो तमाम मछली वली हो जाए। हमने तो मुफ्ती आजम को देखा है, हमने तो मुजाहिद मिल्लत को देखा, हमने तो बाबा शेख अली को देखा है, इन बुजुर्गों को हमने देखा, मलिकुल उलमा को देखा, सिद्दुल उलमा को देखा, बुरहान मिल्लत को देखा। अरे इन बुजुर्गों को हमने देखा, न झोंटा बढ़ाने का नाम वली है, न सर खिलाने का नाम वली है, न हवा में चलने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है। बाबा शेख अली की जिंदगी देखो, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखो, हाफिज मिल्लत की जिंदगी देखो, और हजरत के मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी देखो, तब तुमको पता चलेगा कि न हवा में उड़ने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है, नबी की सुन्नत पर चलने का नाम वली है। उठाकर देखो जिंदगी हाफिज मिल्लत की, उस्ताजुल उलमा जलालुद्दीन आज अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी, जिनके ख्वाबों की ताबीर है। आज उबैद पर किसका फैज़ है? आज अल्लामा अरशद पर किसका फैज़ है? आज मौलाना कमरुज़्ज़मा पर किसका फैज़ है? मुझे कहने दो, अल्लाह अल्लाह सदरुल शरिया का फैज़ उन पर है और उनका फैज़ सब पर। हाफिज मिल्लत को जिसने देखा है उससे पूछो, हमारे कारी फरीद ने देखा है, मैंने पैर टीपा है। अली पीर को हम पटक के ज़बाह कर देने वाले बरेलवी सुन्नी हैं जी, याद रखो, अकीदा दुरुस्त रखो। आज ऐसे ऐसे नकली मौलवी घूम रहे हैं मार्केट में, हैं बरसात के मेढक की तरह, टोकरी का टोकरी,
کرتا اتنا لمبا کہ پیجامہ کی ضرورت نہیں، اور پیجامہ اتنا اونچا کہ لگتا ہے نینی تال جیل سے چھوٹ کے ابھی چلے آ رہے ہیں، اور ٹوپی ہے کہ تکیا کا کھول ہے، اور بدعقیدوں کی داڑھی ہے کہ ہزاری باغ کا جنگل ہے، گوریا گھس جائے تو نکلنے کا نام نہیں۔ بڑا بڑا اجتماع کرتے ہیں، پتہ نہیں اجتماع کرتے ہیں کہ الف سے ہٹا کے کچھ اور کرتے ہیں، اور راتوں میں کیا تقریر کرتے ہیں اجتماع میں، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، غوث سے مت مانگو، خواجہ سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ رات بھر قوم کو سمجھایا اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، اور سویرے ناشتہ 6 بجے بیوی سے مانگ رہے ہیں۔ پکڑا ہمارے علماء نے، کہا ابے تو رات بھر کہا اللہ سے مانگ تو ناشتہ بیوی سے کیوں مانگتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کہا آپ نہیں سمجھیے، کہا ہم نہیں سمجھیں گے۔